Good evening, class. Today we will continue the discussion that we were doing in last session, and we were discussing about the basics of routing. So, to continue the discussion, we will start with the slide that we were discussing at that time. So, yes, now we are. We were discussed about router path and packet switching. हम लोग discuss कर रहे थे. We were discussing like डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, रूट नेटवर्क्स होते हैं, एंड नो रूट डिटरमाइन हमारे पास होते हैं. और वी विल डिस्कस दैट हाउ इट वर्क. एंड earlier we were discussing about the last topic that we have discussed was equal cost load balancing, और हम लोगों ने जो समझा था that how it works. This means the router sends packets over the multiple exit interface listed in the routing table. So we explained, we understand this, like how it works. Now we will continue to the next one. Path determination is a process using a router to pick the best path to a destination. So remember, guys, as we have discussed that I have multiple devices and multiple path we have. In this situation, what is the important part is, the important part is that that's okay if we have equal cost path or equal matrix path. That means the previous section, the in which we got the idea that multiple paths to the same destination and all have the same metric. That means if I have more than one path for a particular destination, in that time, if all of those paths have the same metric, there is no problem. We will going to distribute the packets over the multiple exit interface. Okay, exit interface means क्या होता है? What does it mean? Exit interface means the interface which takes the packet out from the router. There must be an entry interface. I mean, there must be an interface that is getting that from that particular interface the packets is going to enter into the router, and there must be some exit interface as well, because the packets are going to outside from uh, that particular interface. So that's the exit interface actually. This happens if I have the same matrix as we have this, as we have the statement, the same metric. If we have the same metric, there is no problem. All the data is going to be distributed over the multiple exit interface. But the thing, if we do not have same cost or same metrics value, then what will happen? Then we will do the process of path determination. I mean, the router will do the process, but we will see that the router will determine a best path. Okay, among all of the exit, all of the paths. It doesn't matter how many paths we have, but the router will decide that this is going to be the path. That means in in this situation, let me explain. Like in this situation, we have this one exit interface and this one exit interface, because for this router, this R1, we have two exit interface. The packet could go through R2, the packet could go through R3. Now, which one is better if the matrix is different? हो सकता है कि यहाँ से जाने का रास्ता मेरे लिए ज़्यादा इजी हो, मतलब कम मैट्रिक्स वहाँ पर मुझे मिल रही हो, या हो सकता है नीचे वाले रास्ते से मिल रही हो. तो हाउ कुड आई डिटरमाइन? मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास बेस्ट पाथ चूज करते हैं, उनमें जो प्रायोरिटी जो होती है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो कैसे आता है? या तो मेरे पास अगर कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, गाइस, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल while we are doing while we do the practical in Cisco Packet Tracer. We will detail understand this and how it works. But now the point is, we will choose first directly connected network, then remote network, or then
no route determined. Okay, these are three concepts. Okay, next part is स्विचिंग फंक्शंस. अभी स्विचिंग फंक्शंस मतलब क्या? मतलब ये कि सर जो मेरा पैकेट है, अब ऑब्वियस सी बात है कि मैंने मेरे पीसी से अगर कोई पैकेट भेजा है, एवरीवन नोस दैट if I send a packet from my device, so the device is not directly connected to the router. Actually the device is connected to router by using a layer 2 device. Okay, layer 2 device बोले तो सर switch, ठीक है. So the concept is that switch does not know anything about IP addressing. So we all knows that what we do usually, we simply we everyone knows that what we do, we simply try to encapsulate. Sometimes I have we have discussed this topic, that what is encapsulation and all. So sometimes we have we will do the encapsulation for layer 2, we will do the encapsulation for layer 3. So this is going to be the concept. Okay, like what router does. Switching function of a router is a process that is used by a router. Allah dena. So by a router to switch a packet from an incoming interface to an outgoing interface on the same router. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये मेरा राउटर है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये मेरा स्विच, और यहाँ मेरा डिवाइस लगा हुआ है, पीसी जो है वो लगा हुआ है मेरा, और यहाँ से इसके बाहर जाना है, it has to go to the exit interface. Now this device send a message. So for router, what is a switching function? The switching function for a router is a process that is used by router to switch a packet from an incoming interface, from this interface to an outgoing interface on the same router. This is the function that is called switching function. अभी कैसे चल रहा है सर? बिकॉज व्हाट वी डू, देखो सिंपल सी चीज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट द पैकेट इज कमिंग फ्रॉम स्विच, आई मीन फ्रॉम द डिवाइस वाया स्विच. सो अगर मेरा पैकेट स्विच तक पहुंचा है, इफ माय पैकेट रीच एट द स्विच, स्विच विल नो द स्विच विल कन्वर्ट, एक्चुअली इट्स अ लेयर 2, स्विच विल कन्वर्ट द पैकेट इनटू फ्रेम, बिकॉज यहाँ पैकेट नहीं चलते हैं, यहाँ क्या चलते हैं, यहाँ फ्रेम चलते हैं. तो द एनकैप्सुलेशन विल वर्क व्हेन स्विच send the packet to the router, router will not understand the concept of frames. The router first strip off. Router first strip off the layer 2 header. Router पहले layer 2 header को हटाएगा. And router knows that what it has to do. So router will simply examine the destination IP because it's a layer 3 information, and this information was encapsulated in layer 2, because when the packet was in the device, when the packet left the device, when the packet left my computer, it was a layer 3 it was a layer 3 packet, because the packet has to go from the device, the computer, to the destination, and for this we have to enter the destination IP address. So when the packet comes to the switch, switch will understand only the frames. So the encapsulation process has done, and the layer 2 header has been applied on that particular router, on the particular packet, sorry. So after stripping off the layer 2 header, we will got the information about the destination IP. Okay, when the router strip off the layer 2 header, router will easily identify the destination IP. Then router will do its real process. The router will first choose the best path to the destination. Okay, and then it plot to the address, and it will plot it to the packet of layer 3. Then it will re-encapsulate the packet into layer 2 frame, forward frame, out exit interface, और उसको फिर वो आगे forward कर देगा, because it is not defined, it is not 100% sure for a router
कि वो जो पैकेट है वो उसको कहाँ मिलेगा। इट कुड बी कि वो मेरे पास मेरे ही ऑफिस में लगे 2 कंप्यूटर है, मैंने दूसरे को पिंग किया, डेफिनेटली वो राउटर तक तो पहुंचेगा। राउटर तक पहुंचने के बाद वो पैकेट वापस से स्विच के थ्रू होते हुए नीचे भी पहुंचेगा। For that, router has to do the work. Router will again re-encapsulate that particular layer 3 packet into layer 2 frame, and then the frame will go out from exit interface, because remember guys, जब पैकेट ट्रैवल करेगा ना, जब पैकेट ट्रैवल करेगा मीडिया में से, मीडिया मतलब मेरी केबल है, वाईफाई है, डजेंट मैटर क्या मीडिया मैंने लिया है, वायर्ड है, वायरलेस है, वी ऑल नोज द पैकेट विल वर्क एज अ बिट्स। तो पैकेट बिट्स में काम करने वाला है, तो वो लेयर 2 हो, लेयर 3 हो, डजेंट मैटर। बट हाँ ये पता है कि उसके बाद वो आगे जाकर के लेयर 2 से भी मिलेगा, तो वो इसीलिए उसको री एनकेप्सुलेट करते हैं। आफ्टर दिस अगला राउटर उसे रिसीव करने वाला, द नेक्स्ट राउटर विल रिसीव दैट पैकेट, एंड then it will do the next process for the router as well. So this is how it works. भाई राउटर के पास इंफॉर्मेशन है, राउटर रिसीव द इंफॉर्मेशन, सो राउटर फर्स्ट विल डू द स्ट्रिप ऑफ लेयर 2 हेडर, लेयर 2 हेडर को हटाएगा, इट विल स्ट्रिप ऑफ, दैट मींस इट विल रिमूव द लेयर 2 हेडर, देन इट विल आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो कि लेयर 3 हेडर में लगाओ। अब ये हेडर क्या है सर, इट्स एन फील्ड, व्हेन वी एनकैप्सुलेट अ डेटा then we add an extra field of data, of information that must be contained by the packet, about the source, the destination, the size, everything. So that's what we have to add. So that layer 2 header we remove, then we examine destination IP from the layer 3 header, we will choose the best path, we will re-encapsulate the layer 3 packet into layer 2 frame, and we will forward the frame out exit interface. We will never forward the, or remember one thing guys, it is not mandatory that the entry interface cannot be, the incoming interface cannot be the outgoing interface of the same router। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरफेस मेरे लिए एंट्री इंटरफेस है, इनकमिंग इंटरफेस है, वो इंटरफेस मेरे लिए आउटगोइंग इंटरफेस नहीं हो सकता। यस इट कैन, और अभी हम लोग देखेंगे भी कि वो कैसे काम करता है, बट हाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक इंटरफेस मेरे लिए राउटर के लिए इनकमिंग इंटरफेस भी हो सकता है और आउटगोइंग इंटरफेस भी हो सकता है। सो दैट्स वी हैव, देन एज अ पैकेट ट्रेवल फ्रॉम वन नेटवर्किंग डिवाइस टू अनदर, आईपी एड्रेस नेवर चेंज, आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होने वाला उस पैकेट का, but the source and destination MAC address change as packet is forwarded from one router to the next. Remember this line, IP address never change in a packet while we do packet switching। पैकेट को जब हम लोग भेजते हैं एक राउटर से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, आईपी एड्रेस जो सोर्स का है वो चेंज नहीं होने वाला, जो डेस्टिनेशन का है वो चेंज नहीं होने वाला, चाहे बीच में 100 राउटर लगे हों, चाहे बीच में 5 स्विच लगे हों, डजंट मैटर, but MAC address will change is if packet is forwarded from one router to the next। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। and the next is a TTL field, decrement by 1 until a value of 0 is reached, at which point router discards packet। Remember this guys, TTL, time to live value, it's a numeric value that has been assigned to the packets, and that value, that particular value will decrease to count, actually to count the number of stops, the number of hop we can say, actually not for every time, but yeah it's the decrement, it's the decreasing value actually। वो वैल्यू तब तक डिक्रीज होती है जब तक कि वो आप वहां पहुंच नहीं जाते, या फिर जब तक उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। लेट्स से कि मैंने कहा मेरा एक पैकेट है जो कि 5 राउटर आगे जाने वाला है, दैट मीन्स मेरे एक नेटवर्क में 5 राउटर बीच में लगे हैं, एक मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरा 5 राउटर छोड़ करके बैठा, तो वहां से पैकेट वहां तक पहुंचेगा, उसकी डिटेल वैल्यू मान लीजिए कि मैंने 4 करी, तो वो पैकेट वहां तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क। तो जैसे ही वैल्यू जीरो होगी पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। टीटीएल वैल्यू अभी उतना ज़्यादा डिटेल में अपना जाए, इतना ज़्यादा परेशान ना हो, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो मैं कोर्स के एंड में ऐड करूँगा। बट हाँ अभी ये समझ लीजिए कि टीटीएल वैल्यू जो एक ऐसी वैल्यू होती है वो
डिक्रीमेंट होता रहता है उसमें कंटिन्यूसली तब तक जब तक कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, बट उससे पहले उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर हमारा पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उसकी टीटीएल वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो पैकेट वहीं पर डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड होने का मतलब उसको स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, वो पैकेट आगे ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक दैट। फिर हम बात करते हैं पाथ डिटर्मिनेशन स्विचिंग फंक्शन डिटेल्स में हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आई थॉट। आप लोग इसे कुछ इस तरीके से देखिए। लेट मी शो यू। यस, दिस इज वी हैव नाउ वी कैन सी पाथ PC1 हमारे पास है जिसका अपना एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.10 और इसका एक मैक एड्रेस भी है। ठीक है, और वो मैक एड्रेस क्या है 0A110 ओके। दूसरा हमारा पीसी है यहाँ पर पीसी नंबर 2 जिसका एक मैक एड्रेस भी है और उसका एक आईपी एड्रेस भी अपना है। अब हम बात करते हैं द PC1 wants to send something to PC2, here is a part of what happens। तो देखिए कैसे कैसे पैकेट यहाँ से ट्रेवल होता है। हम देखते हैं हमारा पीसी जो है यहाँ से पैकेट निकलेगा तो पीसी फर्स्ट आर कैश फॉर R1। तो आईपी एड्रेस हमारा 192.168.1.0 जो भी हमारा 1.10 है या जो भी पैकेट हमारा रहेगा। The next, the very important thing is the source MAC address हमारे पास होगा 0810 कब तक, जब तक कि वो पीसी से निकला R1 के लिए। ध्यान रखिएगा कि मेरा जो डेस्टिनेशन आईपी है ये चेंज नहीं होगा, सोर्स आईपी है ये चेंज नहीं होगा, बट हाँ ये चेंज होता रहेगा और ये भी चेंज होता रहेगा। अभी एक बार ज़रा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार थोड़ा सा देखें। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पैकेट समझ में आ रहा है कि लाइक क्या चल रहा है, ये पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर वो समझ आ रहा है तो आप इसको समझने की कोशिश करें एक बार कि सर क्या चल रहा है इसके अंदर। यस अला। Sir, between router 2 and router 3, there are cable. But why we change the cable between No, no, that's not a router part 3? of discussion actually. R2 and R3 has a serial cable. Doesn't matter. It's not a problematic situation. Don't worry about it. It's a serial cable now. No issue with the serial cable. We can use the crossover. Actually, serial cable gives us the idea about the WAN structure, about the WAN network, wide area network actually. So whenever we use the serial cable, it seems it looks like we are using the router R2 and R3 has the big wide area network connection. So that's why we use the cable. Okay, so that's not the part of discussion actually. What I want to know कि आप लोगों को देखकर समझ आ रहा ना कि सोर्स मतलब जहाँ से पैकेट निकला, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ तक पैकेट जाएगा, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों में बहुत फर्क है। डेस्टिनेशन आईपी स्टिल 192.168.4.10 because it's IP of PC2 and we are going to send the packet from 1 to 2. So the destination IP will be 192.168.4.10. That's true, that's right. The source IP is 192.168.1.10. That's also true because the source address is PC1. The source device is PC1. So PC1 address is 192.168.1.10. That's true. What about the source MAC? Yes, sir. Source MAC is also 0A10. That's true, sir. वहीं से शुरू हो रहा है. But what about the destination MAC at 0010? That means 0010 belongs to this device only. ये ध्यान रखिएगा, MAC address cannot be a part of communication for a big network, for a wide area network. MAC addresses will change from a LAN to LAN. एक लाइन में कुछ और रहेगा, दूसरे लाइन में कुछ और, क्योंकि हमारे पास इंटरफेस बदल जाते हैं और डिवाइसेस के अपने मैक एड्रेसेस होते हैं। और मैक एड्रेसेस किसके होते हैं हमने ये भी पहले डिस्कस किया था। दी दी एनआईसी कार्ड, द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज द मैक एड्रेस, नॉट द पीसी, नॉट द डिवाइसेस, नॉट नथिंग एल्स। द एनआईसी कार्ड हैज द मैक एड्रेस। So for this MAC address destination MAC address is 0010.
for this packet. And if we go to the next now, so R1 देखिए, R1 receive Ethernet frame, okay. See the destination MAC address, match its own MAC address, that's okay. R1 will strip off the Ethernet frame and find out the destination IP. Guys, the same concept, the same method that we have discussed is doing by the is done by the router R1, okay. Then R1 will consult routing table looking for destination IP. R1 will examine the destination IP. It will look up into the routing table of the destination IP, and then it will find the IP into the routing table, and it will it will found the next hop address. Okay, it got the next hop address. That means the next interface, the next router, we have to send my packet to the next router. It will again re-encapsulate the IP packet into a new Ethernet frame, and the new Ethernet frame will contain the MAC address. Remember guys, MAC address को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, MAC address बहुत important है यहाँ पर. Now you can see the packet that is going to through the R1, the packet that is going through the R1 is the IP address for the source is 192.168.2.2, the destination IP address, this one. Okay, and the MAC address of this one. So you can see destination IP, as we have discussed, is very clear that we will found the destination IP is same for all the packets for throughout the journey. It will be same. Source IP will be same, but the destination MAC address has been changed because that is going to 192.168.2.2. My packet will exit from this router to this router. मुझे उससे आगे का नहीं पता कि आगे क्या है. मुझे आई मीन रिमेंबर दिस थिंग, नो वन नोज अबाउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, नो डिवाइस नोन अबाउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. अगर किसी को पता भी चलता है ना, तो उसका कमाल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, ARP प्रोटोकॉल. हाउ कुड वी आइडेंटिफाई? इवन स्विचेस अपने आप में काम करते वक्त आर्प पैकेट का, आर्प प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं मैक एड्रेसेस को ग्रैब करने के लिए, मैक एड्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए. They will took help of address resolution protocol. That is basically a protocol that took the IP address, reached to the particular interface, to the particular port, and asked for MAC address. IP to MAC for ARP packet. ARP protocol will found the MAC address according to IP address. That is the work. That is the process of the router protocol. Now, when R1 received the frame, it स्ट्रिप ऑफ, उसने उस पे से ईथरनेट फ्रेम को हटाया, उसने डेस्टिनेशन आईपी देखा, और आईपी देखने के बाद व्हाट इट डज, इट फाउंड in its routing table that how could I go to this particular network, because this is a IP 192.168.4.10 is an IP address belongs to that particular network. How could I reach the particular network? It show me that there are two hop counts we have. So 1 and 2, there is two hop counts we have to face. After this we will reach to one to that particular IP address. But next hop IP, what is next hop IP? दिस इज दी R1. हम यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए नेक्स्ट हॉप कौन है? मेरा पड़ोसी. हॉप मतलब राउटर, मेरा पड़ोसी राउटर. तो मेरा पड़ोसी राउटर कौन? सर ये वाला मेरा पड़ोसी राउटर है. इसका आईपी एड्रेस क्या है? सर ये, इसका ये आईपी एड्रेस जिसको मैं जानता हूँ, वो है 192.168.2.2. सर इस पैकेट को यहाँ भेज दो. दैट्स इट. एग्जिट इंटरफेस कौन सा होएगा? FA0/1. खत्म बात. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऐसे काम करता है. नेक्स्ट स्टेप, the next step is path determination is reaching functions में पैकेट अराइव बाय R2. पैकेट R2 ने अराइव किया, रीच किया, पैकेट के पास पहुंचा. R2 ने देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच इट्स ऑन मैक एड्रेस. R2 ने देखा कि मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन का था वो मेरा ही है, मतलब सही पैकेट आया मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है. R2 स्ट्रिप ऑफ करेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, टेबल में मिला उसको, ठीक है, री एनकेप्सुलेट करेगा पैकेट को, ढूंढा, उसने नेक्स्ट ऑफ एड्रेस देखा, री एनकेप्सुलेट किया और आगे भेज दिया. फिर वही पैकेट R3 रिसीव करता है. पी फ्रेम, पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम. अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है. थोड़ा सा इसे बड़ा करके देखते हैं, मैं देखो समझाता हूँ यहाँ पर फंडा क्या चलता है.
ये जो मैंने मेरे से भी थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि सर ये केबल यहाँ पर ऐसी क्यों लगाई है, मैंने कहा था कि ये केबल है ना, ये वाइड एरिया नेटवर्क को डिफाइन करती है। दिस केबल डिफाइन अबाउट द वाइड एरिया नेटवर्क। सो रिमेंबर गाइस, वाइड एरिया नेटवर्क में ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट्स पॉइंट टू पॉइंट, है ना, ओवर ईथरनेट, पीपीओई, या फिर हमारे पास एमपीएलएस है, हमारे पास अलग फ्रेम रिले है। कुछ कुछ कंसेप्ट्स हमारे पास हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके इस्तेमाल करके हम पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो वो वाइड एरिया नेटवर्क्स में पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए पीपीपी, हमारे पास पैकेट पीपीपी प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो बस उसी का इस्तेमाल यहाँ किया गया है ताकि हम पैकेट को फॉरवर्ड कर सकें। तो हमने देखा, यहाँ पे दिख रहा है कि पीपीपी पैकेट हमारे पास है, पीपी फ्रेम हमारे पास पहुंचा, उसने फ्रेम को वापस स्किप ऑफ किया, आईपी एड्रेस देखा, तो उसे पता चला कि सर R3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 मेरे नेटवर्क से, इस नेटवर्क से R3 तो सीधा सीधा कनेक्टेड है। कहाँ से? ये R3 का एग्जिट इंटरफेस है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R3 ने उसे रीएंकेप्सुलेट किया, उसे फॉरवर्ड कर दिया, और धीरे धीरे वो नीचे पहुंचा पैकेट। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। हर एक राउटर, जब तक राउटर्स तक घूम रहा है तब तक हर एक राउटर उस पैकेट को रिसीव करेगा। देखो, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस पे गाइस आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें भी आपको ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है। देखो, आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर इस राउटर पर मैं बैठा हूँ, इस राउटर पर R3 के लिए सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा? सर 0C22। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? सर 0C20। बट द थिंग दैट इज स्टिल सेम इज डेस्टिनेशन आईपी एंड सोर्स आईपी। ये कभी चेंज नहीं होने वाला, इट विल नेवर चेंज, इट विल बी सेम। तो रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग सर्टिफिकेशन लेवल पे काम करते हैं, तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन में आईपी और मैक का क्वेश्चन पक्का आता है, और वो क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम आती है कि हम लोग मैक एड्रेस को लेकर के हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बट रिमेंबर गाइस, मैक एड्रेस हमेशा चेंज होगा, पॉइंट टू पॉइंट चलता है मैक एड्रेस। जिस जगह आप हो वही आपका सोर्स है, उससे नेक्स्ट वाला आपका डेस्टिनेशन होगा मैक के लिए। बट हाँ, आईपी एड्रेस विल रिमेन अनचेंज, डजेंट मैटर आप कितने राउटर्स हैं, कितने स्विच है, कौन सा नेटवर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। It will be same from the source to the destination. So yes, that was the basic steps of the routing। हम लोगों ने कुछ राउटर पाथ, कैसे राउटर काम करता है, कैसे पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, ये बेसिक कुछ फंडामेंटल्स थे हमारे पास। तो यस, अभी हम लोग इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन भी बाद में करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो स्लाइड हमें काम में करनी है, जिसमें हमें आगे चलेंगे। ओके, हम लोग अब समझेंगे कि जो राउटिंग प्रोसेस है उसमें जो राउटिंग टेबल के अंदर जो पाथ गिवन होते हैं, वो पाथ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, एंड उन्हें हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा राउटिंग टेबल को हम लोगों ने डिटेल से समझने के लिए इसको देखा हुआ है। तो गाइज आप लोग ऐसे ना देखें कि इसमें सर क्या हो गया, थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन्ड है ये। तो अब हम बात करते हैं राउटिंग टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा राउटिंग टेबल दिखती है। तो यस, वी विल सी दिस। ओके, दैट्स इट। तो राउटिंग टेबल एंट्रीज कम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। भाई राउटिंग टेबल में एंट्री वो कैसे करता है सर? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हो सकते हैं, स्टैटिक रूट हो सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जैसे रिप है, ओएसपीएफ है, एजीआरपी है, वो हमारे लिए रूट्स लेकर के आते हैं। स्टैटिक रूट्स हमने मैनुअली ऐड करने होते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड वो नेटवर्क होते हैं जो मेरे राउटर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। So there are three source that can gives us the entries in my routing table, the network, the path that could be a part of my routing table actually. ठीक है, so you can easily, I mean you can see this, the show IP route is a command, guys. One more important thing,
that I want from all of you to take a pen and paper, and always there are a lot of commands that we have to use in our CCNA, and I want all of you to use the pen and paper to store the commands. Okay. Now, the next is, we can see, like, looking, you can look at this routing table. This will gives us the idea of all type of three type of sources we have. You can see that there is a network that is coming from S stands for static. हमने स्टैटिक राउटिंग की, उसकी वजह से मुझे एक नेटवर्क मिल रहा है. द नेटवर्क इज 172.16.4.0 is directly connected serial 0/0/1. R stands for RIP, routing information protocol. So RIP routing protocol is a dynamic protocol, dynamic routing protocol. So डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से मुझे एक एंट्री मिली है, मुझे एक नेटवर्क मिला हुआ है. वो नेटवर्क है 172.16.1.0. और ये नेटवर्क मुझे कहाँ से मिल रहा है? सीरियल 0/0/0 से वाया 172.16.2.1. ये वाया का मतलब क्या है, कैसे, वो हम लोग अभी समझेंगे इसको. और सी दैट मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड. सी मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड 172.16.2.0 3.0. और ये जो नेटवर्क्स है ये मेरे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. तो ये मेरे लोकल नेटवर्क्स हैं. डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब लोकल नेटवर्क. और स्टैटिक रूट जो मुझे मिलते हैं ये कौन सा है सर? रिमोट नेटवर्क है. डायनेमिक रूट सर रिमोट नेटवर्क है. ठीक है. अब देखिए राउटिंग टेबल का स्ट्रक्चर देखिए. हम लोग R2 पर बैठे हैं. R2 मेरा राउटर है जिसके पास कितने नेटवर्क्स? ओके गाइस, आई वांट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट हाउ मेनी लोकल नेटवर्क्स अ राउटर R2 हैज. R2 के पास कितने लोकल नेटवर्क्स? हाउ मेनी लोकल नेटवर्क्स R2 हैज? हाउ मेनी नेटवर्क्स R2 हैज द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स? अरे इतना सोचो मत भाई, जल्दी बताओ. 3 है सर. 172.16.3.0 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे राउटर से R2 से FA0/0 पर. 172.16.2.0 वो भी मेरे राउटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वाया सीरियल 0/0/0. एस फॉर सीरियल होता है भाई. ठीक है. ए फॉर फास्ट इथरनेट होता है. ठीक है. एंड एक और नेटवर्क जुड़ा हुआ है 192.168.1.0/24 जो कि मेरे राउटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वाया सीरियल 0/0/1. सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट विच नेटवर्क्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू माय नेटवर्क एंड विच नेटवर्क्स आर रिमोट नेटवर्क फॉर दैट पर्टिकुलर राउटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो yes, I can simply see that routing table in routing Cisco IP routing table is a hierarchical structure. And why we using the hierarchical structure and how we can say that this is a hierarchical structure, we will identify this. And why we are using, the reason for this is to speed up the lookup process को थोड़ा सा स्पीड में लेने के लिए. सो राउटिंग टेबल में हमारे पास कुछ रूट्स होते हैं, वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके रूट्स होते हैं. देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ये राउटिंग टेबल की आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है, या फिर मैं कहूँ कि कोई इसे इतने लेवल पे ना तो कोई एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि भाई देखिए ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे हो गया, बात खत्म. बट हाँ, लेवल 1 रूट्स, लेवल 2 रूट्स, लेवल 3 रूट्स क्या होते हैं, चाइल्ड रूट, पेरेंट रूट क्या होते हैं, वो हम लोग यहाँ समझेंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग. हम बात कर रहे हैं सर लेवल 1 रूट्स में क्या है. हैव अ सबनेट मास्क इक्वल टू और लेस देन टू द क्लासफुल मास्क ऑफ द नेटवर्क एड्रेस. गाइस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्लासफुल मास्क? सबनेट मास्क दैट इज क्लासफुल. देखो, जब भी आपको देखने को मिले सर ये क्लासफुल नेटवर्क है, ये क्लासफुल सबनेट मास्क है, तो मतलब कि सर उसमें कोई सबनेटिंग नहीं है, वो प्योर नेटवर्क है, कंप्लीट नेटवर्क है. जैसे कि राउटिंग टेबल में देखो ये लेवल 1 रूट में आपको दिखाया हुआ है. देखो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है हमारे पास, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर को. तो सर ये है ना 192.168.1.0/24 है, तो इसमें कोई सबनेटिंग नहीं है सर, ये पूरा एक नेटवर्क है. ठीक है. क्लासफुल मास्क मतलब क्लासफुल नेटवर्क जिसकी सबनेटिंग नहीं हुई है, ये हमें ध्यान रखना है. लेवल 1 रूट्स
कैन फंक्शन एज लेवल 1 रूट्स कैसे होते हैं, डिफॉल्ट रूट होते हैं, सुपरनेट रूट होते हैं, या नेटवर्क रूट, मतलब नेटवर्क से होता है, रूट का मतलब नेटवर्क से ही है। डिफॉल्ट रूट इट कुड बी, ये लीजिए डिफॉल्ट रूट क्या होता है भाई, डिफॉल्ट रूट हमेशा ध्यान रखना, हमने आईपी एड्रेसिंग में कहा था कि सर 0.0.0.0/0 ये पूरा नेटवर्क है मेरा, जो कि कैसा है, डिफॉल्ट रूट होता है। मतलब अगर अभी इसको हम लोग समझेंगे, देयर विल बी अ टॉपिक डिफॉल्ट राउटिंग, तो हम लोग देखेंगे उसको कैसे करना है, बट हाँ ये डिफॉल्ट रूट होता है। फिर बात करते हैं सुपर नेट रूट, सीआईडीआर, आप लोगों ने देखा होगा सीआईडीआर। ओके, क्लासफुल क्या होता है, क्लासफुल का मतलब होता है अ नेटवर्क विच इज according to the class, that means which has complete network bit and host bit, which is a normal network, which is a real network that is not yet subnetted or supernetted। कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसको हमने अभी तक डिवाइड नहीं किया है, इट कुड बी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ओके, लेट्स से 10.0.0.0/8 is a network, that network is not divided into further, वो पूरा एक नेटवर्क है। हमने कहा जी सब ये लो 10.0.0.0, ये भी एक क्लासफुल नेटवर्क है। /8 क्लासफुल है सर। अगर मैं यहाँ पर /18 कर दूं तो सर ये सबनेटेड नेटवर्क है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, तो ये क्लासफुल नेटवर्क है। सुपरनेट रूट्स क्या होते हैं, सुपरनेट रूट्स वो होते हैं जिसको हम सीआईडीआर भी कहते हैं, सुपरनेटिंग, हम नेटवर्क्स को जोड़ना, तोड़ना नहीं, जोड़ना, वो हमारे लेवल 1 रूट्स होते हैं। तो लेवल 1 रूट्स कौन कौन से रूट्स होते हैं सर, 3 टाइप के रूट्स होते हैं, तो डिफॉल्ट रूट होगा, या सुपरनेट होगा, या नेटवर्क रूट होगा। आप लोग इसका एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर 192.168.0.0/24 होता है। अगर 22 है तो मैंने 4 नेटवर्क को ऐड कर रखा है, मतलब दिस पर्टिकुलर दिस वन हैज नंबर ऑफ 1024, 1024 आईपी एड्रेसेस हैं इसके अंदर। ये चीज़ आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्क रूट, क्लासफुल नेटवर्क्स, ये क्लासफुल नेटवर्क से होते हैं। 3 टाइप के नेटवर्क से जो हमारे पास हो सकते हैं लेवल 1 रूट्स के तौर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेवल 1 रूट्स। लेवल 1 रूट्स के अंदर क्या होते हैं, अल्टीमेट रूट, नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी होता है, या फिर एग्जिट इंटरफेस भी होता है। सो एक लेवल रूट्स होता है वो और इन्फॉर्मेशन क्या कंटेन करता है अपने पास, नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी हो सकता है, या फिर एग्जिट इंटरफेस भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे सर, देखिए ऐसे पहचानेंगे 192.168.1.0/24, ध्यान रखिएगा 192.168.1.0/24 एक नेटवर्क रूट है, एक नॉर्मल रूट है, क्लासफुल रूट है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे सर, एक एग्जिट इंटरफेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सर एक एग्जिट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है दोनों, सीरियल 0/0/0 0/0/1। Okay, so that is, we are talking about that a level 1 network give us the information of exit interface या फिर next hop address, ये दोनों भी दे सकता है, तो ये हमें देखना है। लेवल 1 रूट्स में कौन कौन से होते हैं, डिफॉल्ट, सुपरनेट, नेटवर्क। लेवल 2 रूट्स हमारे पास अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट हॉप एड्रेस एंड एग्जिट इंटरफेस। पाथ भी हो सकता है, दैट मीन्स आईपी भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है, आईपी इंटरफेस भी हो सकता है। अब देखिए पेरेंट और चाइल्ड रूट्स भी हम लोग जानते हैं। पेरेंट रूट कौन से रूट होते हैं, जो कि लेवल 1 रूट्स होते हैं। लेवल 1 में कौन कौन से थे सर, लेवल 1 में थे सर हमारे पास सबनेट था, मतलब सुपरनेट रूट थे, डिफॉल्ट रूट था, और एक क्लासफुल रूट था। पेरेंट रूट डज नॉट कंटेन एनी नेक्स्ट हॉप आईपी और एग्जिट इंटरफेस इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ये मेरे पास नेटवर्क है और हमने R2 देखा है। R2 कहाँ पर है हमारा, ये वाला, ये पर्टिकुलर R2 मेरे पास है। इसके बाद इसकी राउटिंग टेबल हम लोगों ने देखा, शो आईपी रूट हमने देखा, 172.16.0.0/24 इज सबनेटेड, वन सबनेट्स। गाइस ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में भी आएगा। सबनेटेड नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, सबनेटेड नेटवर्क में हम सब लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा 172.16.2.0 या 172.16.3.0 एक ऐसा नेटवर्क है जिस
नेटवर्क को, मतलब हमने सबनेट किया हुआ /24, आप लोग देख सकते हैं /24 किया हुआ, देखिए 2.0 या 3.0, आप लोग यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं कि सर ये सबनेटेड है। तो यही इंफॉर्मेशन इसने मुझे बताया कि सर मेरा ये जो नेटवर्क है ये सबनेटेड है, और सबनेटेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देते वक्त वो एक पेरेंट रूट होता है, इसे लेवल 1 का पेरेंट रूट कहते हैं, और पेरेंट रूट में कभी भी नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस नहीं, चाइल्ड रूट में होता है। चाइल्ड रूट जैसे कि ये वाला नेक्स्ट वाला 3.0 वाला, ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ पेरेंट अकर्स एनी टाइम इन अ सबनेट इज एडेड टू द राउटिंग टेबल। कब बनता है हमारा पेरेंट रूट? जब हम सबनेटेड नेटवर्क को ऐड करते हैं तो पेरेंट रूट बनता है। चाइल्ड रूट, चाइल्ड रूट को हम लोग क्या कहते हैं सर? लेवल 2 रूट्स कहते हैं। और लेवल 2 रूट कौन से होते हैं? सबनेट्स होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, चाइल्ड रूट आर अ सबनेट ऑफ अ क्लासफुल नेटवर्क एड्रेस। हमने क्लासफुल एड्रेस को हमने टुकड़ों में तोड़ा, तो वो टुकड़ा जो है वो मेरा क्या है? चाइल्ड रूट होता है। और चाइल्ड रूट में वो इन्फॉर्मेशन होती है, ये देखिए फास्ट इथरनेट 0/0। तो हमने हमारे नेटवर्क को पहचानने के लिए, एक हमने बोला सर लेवल 1 लेवल 2 रूट होते हैं, और एक हमने बोला सर पेरेंट और चाइल्ड रूट होता है। तो चाइल्ड रूट कौन सा होता है सर? जो टुकड़ा होता है वो चाइल्ड होगा। पेरेंट कौन सा होगा सर? जो मेन रूट है, क्लासफुल रूट है, वो पेरेंट होगा। पेरेंट रूट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जैसे कि यहाँ इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे आपके पास अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, तो ये जो है ये वाली लाइन जो है, ऊपर वाली लाइन, ये लाइन मुझे इन्फॉर्मेशन, दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट दिस इज अ सबनेटेड नेटवर्क। और कितने सबनेट्स हैं यहाँ पर? एक। और वो क्या है? 172.16.0.0 is directly connected via fast ethernet 0/0। फास्ट इथरनेट 0/0 का यूज करके ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक सबनेटेड है, और ये मेरा ये वाला नेटवर्क, और ये लेवल 2 रूट्स है। ठीक है, ये देंगे हमें पाथ है। पेरेंट रूट विल नॉट गिव अस द आइडिया अबाउट पाथ एंड इंटरफेस। हाँ, लेवल 1 जो रूट है, डिफॉल्ट, सुपरनेट और नेटवर्क, ये मुझे पाथ और इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देते हैं। बट अगर पेरेंट और चाइल्ड रूट की बात करूँ, तो पेरेंट रूट आप खुद देख सकते हैं, ये मेरा पेरेंट रूट है, और पेरेंट रूट मुझे इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन चाइल्ड रूट दे रहा है कि सर वो पाथ एग्जिट कहाँ से हो रहा है, वो भी दे रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेवल 2 चाइल्ड रूट कंटेंट रूट सोर्स, द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द रूट। रूट सोर्स भी रखेगा, रूट उसे कहाँ से मिल रहा है, the network address भी रखेगा। level 2 child roots are also considered ultimate roots because they contain the next hop address और exit interface। इसे हम ultimate root भी इसलिए कहते हैं क्योंकि exit interface या next hop address रखते हैं। आप इसे देख सकते हैं आराम से, ये वही वाला एग्जांपल हमारे पास है 172.16। ये मेरा पेरेंट रूट है, इसके पास सिर्फ एक चाइल्ड है, एक सबनेट है, एक टुकड़ा यहाँ पर यूज में लिया गया है, और वो टुकड़ा कौन सा है? 172.16.3.0, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। एग्जिट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ दिखाई दे रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लासफुल नेटवर्क है ये। स्लैश सबनेट मास्क और चाइल्ड रूट का सबनेट मास्क क्या होएगा? /24 होगा। ठीक है, अब आप लोग कैसे बोलेंगे सर इस पर तो /24 लिखा हुआ और आप कह रहे हो क्लासफुल है। आप लोग कहाँ ध्यान देना है? आप लोगों को ध्यान देना है इस पर। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है सिर्फ इसे देखो, ये क्या है? 172.16.0.0। इट्स अ कंप्लीट क्लास बी नेटवर्क, और क्लास बी नेटवर्क मतलब कंप्लीट क्लास बी नेटवर्क है। यहाँ पर 3.0 या 1.0 या 0.0 लिखा, 0.0 कंप्लीट नेटवर्क है, क्लासफुल नेटवर्क है। जो आगे /24 है वो इसका मास्क नहीं है, वो नीचे वाले का, यस ये वाला सी वाले का, इसके लिए सबनेट मास्क है, और वो क्या है? /24। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बोथ चाइल्ड रूट हैव द सेम सबनेट मास्क, दिस मींस द पेरेंट रूट मेंटेन द /24 मास्क। अभी देखो चाइल्ड रूट का सबनेट मास्क क्या है, ये देखो, वो यहाँ पेरेंट ने कंटेंट किया हुआ है 2 और 3 वाला। आप अगर ये चीज़ देखना चाहते हो कि सर ये चीज़ कहाँ थी, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे नेटवर्क को देखा था, डायग्राम को आप लोगों ने देखा, टोपोलॉजी डायग्राम को, तो वहाँ समझ आ रहा था ये चीज़ कि सर ये दो नेटवर्क जुड़े हुए 172.16.2.0
और 172.16.3.0, और वहाँ पर एक और नेटवर्क भी कनेक्टेड था, वो नेटवर्क था 192.168.1.0। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वो चीज़ रिपीट कर दूँ। ये देखिए, R2 पर हम लोग हैं और R2 के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, 3.0, 2.0 और 192.168.1.0। ये मेरा क्लासफुल है, ये नेटवर्क मेरा क्लासफुल है, ये मेरा लेवल 1 का नेटवर्क, लेवल 1 का रूट है, और ये रूट मेरा क्लासफुल रूट है। इसके पास इसका एग्जिट इंटरफेस भी होगा, ये इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है क्योंकि अकेला है। पेरेंट चाइल्ड कब आएंगे? सर जब वो मेरा नेटवर्क सबनेटेड होएगा तब पेरेंट चाइल्ड आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो हाँ ये सबनेटेड है, ये भी सबनेटेड है, तो पेरेंट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन R2 में मिलेगी। किसके लिए? सर 172.16.3.0 के लिए और 2.0 के लिए, लेकिन 192.168.1.0 के लिए कोई पेरेंट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो क्लासफुल नेटवर्क है। क्लासफुल नेटवर्क में पेरेंट चाइल्ड चलता ही नहीं, क्योंकि उसमें तो टुकड़े हुए नहीं ना, इसलिए। फिर अब देखो इस डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा है, वही वाला डायग्राम, पुराना वाला डायग्राम अपना है। बिलोंग टू द पेरेंट रूट 16.0.0/24 के दो चाइल्ड नेटवर्क हैं, 2.0, 3.0, ठीक है। तो देखो 2.0, 3.0, ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कनेक्टेड। सबनेट्स इसके एक ही किए हम लोगों ने, इसको फर्दर और अलग अलग तोड़ा होता मैंने, लाइक /24/16 स्लैश आई मीन /17 18 23 25, तो वो अलग अलग दिखा रहा होता है मुझे। क्लासलेस नेटवर्क मतलब जिसका मैंने टुकड़े किए हों, जिसका सबनेट किया हो मैंने, चाइल्ड रूट डू नॉट हैव टू शेयर द सेम सबनेट मास्क। क्लासलेस नेटवर्क्स में चाइल्ड रूट वाला सेम नहीं होता, अलग अलग भी हो सकता है। तो आप लोग देखो ये वही वाला डिस्कशन जो अभी हम लोग कर रहे थे, क्या आप लोग इसे देख करके समझ सकते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था? सर ये तो /30 है, ये /24 है, ये /30 किसका एग्जाम्पल है सर? VLSM। VLSM कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है सर? अब आप खुद देखो, 3 सबनेट्स, 3 सबनेट्स हैं, लेकिन 2 सबनेट मास्क हैं। इन दोनों के लिए 30 और 30 वालों के लिए सबनेट मास्क तो क्या हो गया साहब? /30 वाला, और इसके लिए /24 वाला हो गया। तो 2 तो सबनेट मास्क और 3 टुकड़े हैं सर। अब आप देख सकते हैं इजीली, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ये दोनों जो टुकड़े हैं वो हमेशा क्या होते हैं साहब? चाइल्ड रूट होते हैं। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, द 172.16.0.0/16, देखो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि ये VLSM था, तो इसने बोला कि सर इसको /16 रखो, क्योंकि बाकी के सब जो सबनेट्स हैं, बाकी सब जो टुकड़े हैं वो अपने अलग अलग सबनेट के साथ चल रहे हैं, तो उनको हम अलग से इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों को इस टेबल को थोड़ा सा गौर से देखिए। क्लासफुल नेटवर्क्स में पेरेंट रूट नहीं होते हैं, क्यों दिखाएगा सर? क्लासफुल है ना। क्लासलेस में यस दिखाएगा। वेरिएबिलिटी सबनेटेड इज सीन इन परमानेंट राउटिंग टेबल, क्लासफुल में नहीं, सबनेटेड ही नहीं है तो क्लासफुल में कुछ दिखेगा ही नहीं। डिफरेंट सबनेट मास्क नहीं दिखेगा। ईच राउट एंट्री नहीं होगा, क्लासफुल में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चाइल्ड रूट तभी शो होते हैं जब नेटवर्क टुकड़ों में टूटा हुआ हो। जब मेरा नेटवर्क 192.168.1.0/24 है, लेकिन मैंने उसको दो टुकड़ों में काम में लिया हुआ है, /25 और /26 लिया हुआ है, तो या फिर /25 के दो टुकड़े। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा नेटवर्क डिवाइडेड नहीं है तो चाइल्ड रूट नहीं होंगे। चाइल्ड रूट नहीं होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट मास्क भी नहीं होंगे, हर एक चाइल्ड रूट के अलग अलग एंट्री भी नहीं होगी। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर क्लासलेस में, यस क्लासलेस मतलब सब कुछ होगा। पेरेंट रूट में क्लासफुल मास्क का डिस्प्ले होएगा। देखो क्लासफुल मास्क का डिस्प्ले अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो सर, ये पेरेंट सबनेट है, ये पेरेंट पेरेंट रूट है ना, पेरेंट रूट में क्लासफुल मास्क का सबनेट वो दिख रहा है आपको, नेटवर्क बिट दिख रहा है 16, 172.16.0.0/16 वाला है कि नहीं है सर? बस वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है। पेरेंट एंड चाइल्ड रूट क्लासलेस नेटवर्क्स में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा डायग्राम एक बार आप लोग खुद देखिए और इसमें बताइए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो यही कुछ है जो आपके सामने डिस्प्ले है, हमने इतनी देर से सिर्फ इसे ही डिस्कस किया है। आई वॉन्ट टू मेक इट श्योर कि आप लोगों को वो समझ आया।
कि नहीं आया। गाइस टेक योर टाइम 2 to 3 मिनट्स और इस डायग्राम को देख करके मुझे फटाफट से बताइए। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग लग रहा हो कि सर ये क्या पढ़े जा रहे हैं, लेकिन गाइस हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो हमारे बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग उसे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो दैट्स वाई अभी इसमें से कोई है किसी को कोई डाउट वो मुझे बताएं फटाफट से। नंबर ऑफ सबनेटेड मास्क। ओके प्रथम, नंबर ऑफ सब प्रथम, अब पहले तो आप मुझे बताइए इतने दिनों से आप कहाँ गायब थे? बड़े दिनों बाद प्रथम हमारी क्लास में आए, कम से कम 5 से 6 दिन बाद। प्रथम कहाँ थे? रिवाइज कर रहे थे या क्या हो गया था भाई? अच्छा प्रथम अभी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सबनेट मास्क। प्रथम ने कहा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ सबनेट मास्क दो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। /30 जो नेटवर्क हैं, दो मेरे पास टुकड़े हैं जिनका जिनकी नेटवर्क बिट /30 यानी मेरा /30 वाला नेटवर्क है, तो उन दोनों का नेटवर्क मास्क तो सबनेट मास्क तो सेम रहने वाला है। तो एक सबनेट मास्क एप्लीकेबल है उन दोनों नेटवर्क्स के लिए, ऑब्वियसली है सर। /30 का मतलब कितना हो गया? 252, यही होगा। 255 255 255 252। ओके, नेक्स्ट का भी 255 255 255 डॉट 252। तो एक ही सबनेट मास्क काम कर रहा है, तो एक मास्क तो यहाँ लग गया। अगला एक और मास्क कहाँ लगेगा? तीसरे वाले टुकड़े पर, जो कि /24 है, तो 255 255 255 डॉट 0। तो इस पूरे नेटवर्क के लिए 16 तो इसको पूरा शो कर रहा है, इसका पेरेंट का सबनेट मास्क है। बाकी के जो हैं, बाकी के जो तीन टुकड़े हैं, इन तीनों टुकड़ों के लिए मैंने दो सबनेट मास्क से काम चलाया है। ये हमें यहाँ समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आई थॉट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं राउटिंग टेबल में लुकअप प्रोसेस क्या होती है। लुकअप का मतलब क्या हो गया सर? लुकअप का मतलब होता है अपने रूट्स को ढूंढना, अपने नेटवर्क्स को रूट्स को ढूंढना, क्लासफुल है कि क्लासलेस है, वो सब चीज़ें ढूंढना। ठीक है, अभी हम लोग उसे समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो राउटिंग टेबल में लुकअप प्रोसेस कब क्या होता है? सबसे पहले तो लेवल 1 रूट्स को चेक करता है। एक नेटवर्क आया, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे एक एग्जांपल की तरफ, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम देखा था। आप लोगों में से कुछ लोगों को डायग्राम ध्यान भी होगा। ठीक है, R2 से तीन नेटवर्क जुड़े हुए थे। एक उसके पास लोकल कनेक्टेड था 172.16.3.0। ठीक है, और दो हमारे पास सीरियल केबल लगी हुई थी जिससे R1 और R3 कनेक्टेड था। तो जो R1 कनेक्टेड था वो था 172.16.2.0 से, एंड जो 3.0 से, और जो R3 कनेक्टेड था वो कनेक्टेड था 192.168.1.0/24 वाले नेटवर्क से। सो अगर मेरा लोकल नेटवर्क कहता है कि सर मुझे पिंग करना है 192.168 1.1 से, तो उसके लिए उसे ढूंढना पड़ेगा कि सर ये 1.1 है किधर। तो जो राउटर, अभी हम लोगों ने गाइस, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम लोगों ने अभी देखा था कि पैकेट जब भी राउटर के पास पहुंचता है, राउटर पहले तो फ्रेम को स्ट्रिप ऑफ करता है, फिर लेयर 3 हेडर में से डेस्टिनेशन आईपी निकालता है, फिर उसे राउटिंग टेबल में लुकअप करता है। मिल गया, फिर उसका बेस्ट पाथ ढूंढता है। भैया बेस्ट पाथ कौन सा है? तीन रास्ते वहाँ पहुँचने के। अच्छा ये वाला बेस्ट, दिस इज द बेस्ट पाथ। चलो ठीक है, यहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड कर दे, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले उसे वो दोबारा से री एनकैप्सुलेट करता है, फ्रेम में डालता है और फिर भेजता है। वही काम, वो जो बीच वाला पार्ट था ना, डेस्टिनेशन आईपी मिलने के बाद राउटिंग टेबल में देखो, बेस्ट पाथ चूज करो, वो कैसे होता है हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हम कहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो स्लाइड दूसरा था तो उसमें था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं हमारे इसकी तरफ। सबसे पहले हम लोग लेवल 1 रूट देखेंगे। हो सकता है वो नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अच्छा ठीक है, हो सकता है वो नेटवर्क डिफ़ॉल्ट रूट हो। अगर अगर डिफ़ॉल्ट रूट मिल गया तो ठीक है, मुझे कहीं ढूँढना ही नहीं है। सो इफ़ बेस्ट मैच अ लेवल 1 अल्टीमेट रूट
and is not a parent route, this route is used to forward packet. अगर बेस्ट मैच मिल गया, लेवल 1 का अल्टीमेट रूट है एंड इज नॉट अ पेरेंट रूट, दिस रूट इज यूज्ड टू फॉरवर्ड द पैकेट। देखो जी, अल्टीमेट रूट कौन सा रूट होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी, आप भी ध्यान रखिएगा। अल्टीमेट रूट वो रूट होता है जिसके अंदर डेस्टिनेशन नेक्स्ट स्टॉप का एड्रेस या नेक्स्ट स्टॉप का एग्जिट इंटरफेस होता है, मतलब हमें किधर जाना है उसकी इंफॉर्मेशन हो, तो वो हमारा अल्टीमेट रूट होता है। कोई भी रूट, कोई भी इंफॉर्मेशन, मेरे राउटिंग टेबल की कोई भी एंट्री, उस एंट्री में अगर ये लिखा है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए आप इस इंटरफेस से निकलो या फिर इस पर्टिकुलर नेक्स्ट ऑफ एड्रेस से निकलो, तो वो मेरा कौन सा रूट हो जाएगा, अल्टीमेट रूट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अल्टीमेट रूट देखो कि वही है तो पैकेट फॉरवर्ड कर दो। अगर वहां नहीं मिला, अल्टीमेट रूट में नहीं है, लेवल 1 के रूट्स में नहीं है, पेरेंट रूट भी नहीं है, तो चाइल्ड रूट को ढूंढता है वो। चाइल्ड रूट सेज if there is a match with level 2 child root, then the subnet is used to forward the packet। सबनेट को यूज करेगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए पेरेंट रूट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो एक वर्स्ट केस माना जाएगा, पेरेंट रूट का इस्तेमाल एक राउटर नहीं कर सकता है। अगर पेरेंट और चाइल्ड रूट है राउटर में, तो राउटर विल ऑलवेज लुक फॉर चाइल्ड रूट, क्योंकि वहां प्रॉब्लम क्या होती है, चाइल्ड रूट का मतलब क्या है, टुकड़े, नेटवर्क के टुकड़े, और अगर हमने मेन नेटवर्क में भेज दिया तो पैकेट मल्टीकास्ट हो जाएगा, पैकेट अलग अलग फॉरवर्ड हो जाएगा, वो नहीं होने देगा हमारा राउटर। router will always do unicast, so router will never send the packet to the parent root, वो हमेशा चाइल्ड रूट को ढूंढेगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि वो चाइल्ड रूट को ही ढूंढेगा। यस, कुणाल क्या हो जाता है भाई, तुम्हारे दो दो आईडी चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अगर चाइल्ड रूट में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो फिर वो क्या चेक करता है, राउटिंग बिहेवियर टाइप चेक करता है। कैसे, मतलब डिटरमाइनिंग राउटिंग बिहेवियर टाइप, राउटर डिटरमाइन क्लासफुल और क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर। अगर क्लासफुल है मेरा राउटिंग, तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, और अगर क्लासलेस है तो वो सुपरनेट लेवल तक जाएगा, फिर नहीं मिला तो वो डिफ़ॉल्ट रूट में भेज देगा। क्लासफुल का मतलब ये है कि मेरा जो राउटर है उसके अंदर जो हमने राउटिंग करवाई है, वो हम अब ऐसा समझ लीजिए कि रिप जो है वो क्लासफुल, रिप का वर्जन 1, रिप राउटिंग करेंगे हम लोग, उसमें दो वर्जन है, रिप वर्जन 1 एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वहाँ हम लोग सबनेटेड नेटवर्क्स को नहीं डाल सकते हैं। तो अगर पहले लेवल पे ही हमें नहीं मिला इंफॉर्मेशन, या दूसरे लेवल पे लेवल 1 रूट्स में नहीं मिला या लेवल 2 रूट्स में नहीं मिला, तो पैकेट को वो ड्रॉप कर देगा भैया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर क्लास फुल राउटिंग नहीं है, क्लासलेस राउटिंग है, तो फिर वो क्या करेगा, सुपरनेट है या डिफ़ॉल्ट रूट है, अगर मिल जाता है तो वो उसे वहाँ भेजेगा, पैकेट ड्रॉप नहीं करेगा। फिर भी नहीं मिलता है तो अंततः होगा क्या, लास्ट में क्या होगा, पैकेट ड्रॉप होगा। राउटिंग टेबल में अब बात करते हैं कि साहब मेरे पास आईपी एड्रेस है 172.16.0.10। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देखिए। लॉन्गेस्ट मैच मेजर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेवल 1 नेटवर्क रूट्स में क्या करते हैं, वो लॉन्गेस्ट मैच, बेस्ट बेस्ट मैच कैसे करेंगे, वो लॉन्गेस्ट मैच को देखते हैं कि सर मेरा जो आईपी है उसका सबनेट मास्क भी दिया हुआ होएगा मेरे को कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम वो यहाँ पर क्या करते हैं, नेटवर्क बिट्स को मैच करते हैं, नेटवर्क बिट मैच करते हैं। अच्छा, इसमें तो ये नेटवर्क बिट है, ठीक है चलो इसे लेते हैं काम में। वो मैक्सिमम मैच तक लेके जाते हैं, नेक्स्ट मैक्सिमम मैच तक वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट मैच होगा, लॉन्गेस्ट मैच टू आईपी पैकेट डेस्टिनेशन, तो वो क्या करेगा, द बेस्ट मैच इज मैच दैट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ लेफ्ट मोस्ट बिट मैचिंग बिटवीन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड द रूट इन द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में रूट है 172.16.0.0/12/18/26। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जैसे जैसे नेटवर्क बिट बढ़ती है, वैसे वैसे नेटवर्क बिट जो है वो सेम होने लगती है। तो अभी इसमें देखेंगे, ये ध्यान रखना, हमें तो क्या करना है, हमें तो मैच करना है भैया। सबसे लंबा मैच कहाँ जा रहा है, /26 में जा रहा है, तो /26 में मैच करेंगे, दैट्स इट। वो पैकेट हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर राउटिंग टेबल लुकअप प्रोसेस में अगला क्या, फाइंडिंग द सबनेट मास्क यूज टू डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट मैच। अभी लॉन्गेस्ट मैच, सबसे लंबा मैच कौन सा, मतलब तीन नेटवर्क्स हैं, तीन रूट्स हैं,
बेटर कौन सा है, किस पे जाना चाहिए, उस चीज़ का इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा सर? सबनेट मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबनेट मास्क will use to identify, to determine actually the longest match. So PC1 पिंग करता है, दिस इज द सिनेरियो एक्चुअली। PC1 ट्राई टू पिंग, तो राउटर एग्जामिन लेवल 1 रूट्स फॉर बेस्ट मैच। PC1 ने यहाँ भेजा, तो हम बैठे हैं R1 के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, आप लोग इसे समझ सकते हैं देख करके। ये आप लोग देखिए, PC1, when the packet sent from PC1, if best match in a level, okay, the exit a match between 192.168.1.2 and 192.168.1.0/24 router forward packet serial. You can see this, guys. You can see this table. It will show you that how it's going to work. 172.16.0.0/24 एक subnetted network है, क्योंकि guys remember this thing, we are talking about the single mask. Okay, the FLSM में, in FLSM every time the parent network will have the slash network bit of the सबनेट्स। अगर FLSM है, इफ FLSM किया हुआ है यहाँ पर, जो कि हम जानते हैं कि FLSM है 172.16.2.0, 1.0, 3.0, तीनों में /24 ही चल रहा है, /24 चल रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो /24 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नेटवर्क को FLSM किया हुआ है, और FLSM किया हुआ है तो यहाँ पर पेरेंट रूट में कौन सी इंफॉर्मेशन शो करेगा? वो पेरेंट रूट में वो इंफॉर्मेशन शो करेगा हमारे नेटवर्क्स के सबनेट मास्क की, चाइल्ड के सबनेट मास्क की जो इसने की हुई है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को वेरीफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटर एग्जामिन करता है बेस्ट मैच को, बेस्ट मैच कहाँ मिल के आया इसको? देखो रूट मेरा क्या है, 192.168.1.2 है मेरा एग्जिट। तो एग्जिट मैच कहाँ मिला? इस पे मिला सर, आर पे, इस आर पे मिला सर। तो ये मेरा बेस्ट है, यहाँ पर जाके मिलेगा मेरे को। 172.16 पे नहीं मिला, 192.168.1.0 पे मिला, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट मैच। पता कैसे चलेगा सर? नेटवर्क सबनेट मास्क पता चलेगा सर। अभी ये कौन है जो हमारे, कौन से बंधु ने म्यूट नहीं करा? कुणाल भाई म्यूट करो इसको, या कुछ पूछना है आपको? कुणाल, तो प्रोसेस ऑफ मैचिंग क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ मैचिंग कहता है कि सर फर्स्ट देयर मस्ट बी अ मैच मेड बिटवीन द पेरेंट रूट एंड डेस्टिनेशन आईपी। पहले तो पेरेंट रूट को ढूंढो, पेरेंट रूट और डेस्टिनेशन आईपी में कुछ मैच हो रहा है? तो जी लेवल 1 का पेरेंट रूट ये है ना जी, यहाँ तक तो मैच हुआ, ओनली 1 बिट मैच होगी सब, ठीक है। फिर आगे देखो, इसको देखा तो इसमें तो सर लंबा, सबसे लंबा मैच यही हो रहा है। तो फिर पता चला कि सर इससे बेटर मैच मेरे पास और कहीं नहीं है। तो वहां तो मैच किया हमने, यहाँ मैच करके देखा, यहाँ मैच देखा तो क्या पता चला सर? सिर्फ एक बिट मैच हो रही है, 192 172 वाला जो फर्स्ट 128 वाली बिट है वो मैच हो रही है सर, उसके अलावा कुछ मैच नहीं हो रहा, आगे से मिसमैच हो गया। तो फिर क्या करें सर? ये तो तीनों रूट तो यही है, ये आप लोग देखेंगे टेबल के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा। इस टेबल में जरा गौर कीजिए, मेरे पास कितनी एंट्री है? 1 2 3 4, 4 एंट्री है मेरे राउटिंग टेबल में, और चारों एंट्री में से 3 एंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर पेरेंट रूट की है, 172.16.0.0/16 वाले रूट की है। तो नो डाउट्स कि वहां से तो मैच नहीं मिलना है, बचा कौन? 192.168.1.0, तो मैचिंग वहीं से होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैच करके देख लेते हैं ये लोग। यहाँ हुआ मैच? नहीं हुआ। लेवल 3 में मैच राउटिंग इस पर मैच किया, मिल गया सब। अब वो पैकेट को बिना कुछ सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देगा जी, ये इसका तरीका होता है फॉरवर्ड करने का। अब अगला सिनेरियो हम लोग देखें। बिफोर लेवल 2 चाइल्ड रूट आर एग्जामिन, चाइल्ड रूट लेवल 2 पे जाने से पहले वो पेरेंट को मैच करता है कि सर, जैसे जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि सर उसने अभी 172.16.0.0/16 को ही मैच किया, 1.0 2.0 3.0 को मैच ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर पेरेंट रूट ही नहीं मैच हुआ, इसी में एक ही बिट सेम है, तो बाकी फिर नीचे जाके करेगा क्या वो? इसलिए उसने आगे मैच नहीं किया, सिर्फ उसने इसको मैच किया। इसमें से मैच होगा तो हम लोग यहाँ जाएंगे, नहीं मैच हुआ तो यहीं छोड़ दो, हमें तो इस पे चले आना है, इसको मैच करेंगे फिर हम।
अभी ये समझ थोड़ा थोड़ा आएगा आपको, अभी जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। अगर पेरेंट रूट से मैच हो गया, उसके बाद में लेवल 2 पे चाइल्ड रूट को एग्जामिन किया जाता है। अगर पेरेंट रूट पे मैच नहीं हुआ तो सॉरी चाइल्ड रूट को वो नहीं छेड़ेगा। इस बारे में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मैच को चूज किया जाता है और फिर उसके हिसाब से काम होता है। अगर अगला एग्जाम्पल देखें कि सर वो चाइल्ड रूट वाला बताओ कहाँ से कैसे करना है, तो वो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखिए। इस एग्जाम्पल पे आप गौर कीजिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड रूट और पेरेंट रूट के हिसाब से। इसमें आप देखेंगे कि राउटर एक्स मेरे पास गिवन है, जिस राउटर में 3 नेटवर्क हमें दिखाई दे रहे हैं, /30 /30 /20 वही वाला VLSM वाला। तो पहले लेवल 1 पेरेंट रूट पर मैच होगा, जरा चेक करते हैं। तो वहां मैच हो गया, उसके बाद में फिर इनमें मैच होगा। अदरवाइज वी विल नॉट चेक, वी विल नॉट एग्जामिन दी चाइल्ड रूट। ठीक है, पेरेंट रूट अगर मैच होता है तो हम चाइल्ड रूट की तरफ चलेंगे, अदरवाइज चाइल्ड रूट एग्जामिन नहीं किया जाएगा। इस बारे में ध्यान रखिएगा। राउटिंग बिहेवियर, क्लासफुल एंड क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल मेरे पास है। इन्फ्लुएंस हाउ राउटिंग टेबल इज पॉपुलेटेड, ये बताते हैं राउटिंग टेबल किस तरीके से पॉपुलेटेड होगी। पॉपुलेटेड मतलब किस तरीके से उसमें एंट्रीज होने वाली हैं। क्लासफुल एंड क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर क्या होते हैं। डिटरमाइन हाउ राउटिंग टेबल इज सर्च आफ्टर इट इज फिल्ड, एक बार टेबल को भरने के बाद उसको कैसे कैसे उसमें से रूट्स को ढूंढना है, ये बिहेवियर सेट होता है राउटिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल रिप वर्जन 1 एज आई टोल्ड यू। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, फिर स्टैटिक रूट्स, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। सो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप वर्जन 1। आईजीआरपी, वी आर नॉट यूज आईजीआरपी, इसलिए मैंने आईजीआरपी का डिस्कशन नहीं किया, इसका टॉपिक को नहीं मैंने बोला यहाँ पर, बिकॉज वी आर नॉट यूज, दिस दिस आईजीआरपी इज नॉट इन यूज। तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप वर्जन 2 है, ये आईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, आईएसआईएस है, बीजीपी है। ठीक है, अब बात करें क्लासफुल राउटिंग बिहेवियर क्या करता है। सर्च प्रोसेस, हम लोग चाइल्ड रूट में क्यों नहीं सर्च करते हैं। ओरिजिनली नेटवर्क्स वर ऑल क्लासफुल, क्योंकि सारे नेटवर्क पहले से ही क्लासफुल हैं। जो मेरा नेटवर्क है जहाँ मुझे जाना है वो मेरा क्लासफुल है, तो वहाँ पर जाने के लिए मैं फिर उसको क्यों मैच करूँ। ये हमारे पास देखो एक बेसिकली हम लोग इसे समझते हैं, अगर ये किसी को नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे ये चल रहा है। हम चीज़ों को समझते हैं कि सर बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। अभी जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने ये लाइन यहाँ पढ़ी होगी कि मैं आई शो यू, देखें ये यहीं पर है। एंड यस, फाइंडिंग दी, यस, ओके, यस, राउटर डिटरमाइन, ये वाला लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। एंड दिस लाइन स्टेट्स दैट राउटर डिटरमाइन क्लासफुल और क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर। इफ क्लासफुल, देन पैकेट इज ड्रॉप। If classless, then router search level 1 supernet and default root अगर है तो ठीक है, अदरवाइज वो चाइल्ड रूट्स में चला जाता है ढूंढने के लिए। तो वो चीज़ कब होएगी, वो चीज़ कब देखेंगे, अगर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो, अदरवाइज पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। पेरेंट रूट में ढूंढ करके अगर अगर क्लासफुल नेटवर्क है, ध्यान रखिएगा, क्लासफुल राउटिंग करवा रहे हैं हम लोग तो वो सिर्फ पेरेंट रूट को ढूंढेगा, चाइल्ड रूट को नहीं देखते हैं राउटर में। ये हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मेरा राउटर एक पर्टिकुलर आईपी तक पहुंचने के लिए मेरी राउटिंग टेबल को वो मेजर करता है, कैसे वो मैच करता है, कैसे उसको एग्जामिन करता है, वो हम लोग दिख रहे हैं। तो ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि सर वो क्लासफुल और क्लासलेस वाला कैसे काम करता है। तो वो कुछ ऐसे करता है। तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं सर। रिप वर्जन 1 है, जैसा मैंने बताया था। आईजीआरपी है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि नो लॉन्गर यूज। Routing behavior are used to locate information in the routing table. Only a single routing behavior can be used. सिंगल राउटिंग बिहेवियर या तो क्लासफुल होगा या क्लासलेस होगा, एक राउटिंग बिहेवियर यूज होगा। राउटिंग बिहेवियर डिटरमाइन हाउ राउटिंग टेबल इज सर्च्ड आफ्टर इट इज फिल्ड, एक बार राउटिंग होने के बाद
जब किसी रूट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है, इफ़ आई वांट टू ग्रैब एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर रूट, मुझे वहाँ पहुँचने तक कैसे जाना चाहिए, तो वो मुझे निकालने के लिए राउटिंग बिहेवियर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। राउटर्स चाइल्ड रूट तक क्यों नहीं जाते हैं? वो क्लासफुल राउटिंग बिहेवियर कहता है कि वो चाइल्ड रूट तक क्यों नहीं जाते हैं? ओरिजिनल नेटवर्क्स वर ऑल क्लासफुल। ऑब्वियसली जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, अगर उसको सबनेट ना करूं तो, या मैं नेटवर्क्स की बात करूं तो, सारे नेटवर्क इन अ वेरी इनिशियल टाइम होते कैसे हैं सर? क्लासफुल ही होते हैं सारे, उसे डिवाइड किया जाता है बाद में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दिस मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुड सबनेट अ मेजर नेटवर्क एड्रेस, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के राउटर्स के अंदर वो सबनेटिंग को ऐड करके उसे थोड़ा और कम कर सकते हैं। भाई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा होता है ओरिजिनल नेटवर्क, उसने उसे सबनेट करके काम में लिया हुआ है। अगर सबनेट अवेलेबल नहीं है राउटिंग टेबल में, तो सबनेट डिड नॉट एग्जिस्ट और पैकेट वाज ड्रॉप। अगर क्लासफुल राउटिंग बिहेवियर है तो सबनेट नहीं होगा, राउटर सबनेट नहीं लेकर के आएंगे, और उसकी एंट्री अगर नहीं होगी पैकेट में तो वो ड्रॉप कर देगा। अच्छा, हम ज़रा थोड़ा सा आगे हैं। राउटिंग बिहेवियर आईपी क्लासलेस कहाँ से शुरू हुआ था? Beginning with iOS 11.3, IP classless was configured by default. क्लासलेस आईपीज को हम लोग तब बिहेवियर हमने तब शुरू किया था जब iOS का वर्जन 11.3 यूज हुआ था। क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर वर्क फॉर डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क्स एंड सीआईडीआर सुपरनेट्स। सीआईडीआर सुपरनेट जो होते हैं, यानी सुपरनेटिंग्स के लिए क्लासलेस राउटिंग, या फिर जो सबनेट्स होते हैं डिसकंटिन्यूअस जो होते हैं नेटवर्क्स, उनके लिए, लाइक जैसे 192.168.1.0/26 मैंने ले रखा है, और 192.168.1.64/28 मैंने ले रखा है, तो ऐसा नेटवर्क्स के लिए हम लोग इस्तेमाल में करते हैं। क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर आईपी क्लासलेस। ओके, आई गॉट अ मैसेज। ओके, खत्म। ओके सर, ये पुराना है, ठीक है। इफ क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर है, अगर क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर है, यानी कि आईपी क्लासलेस बिहेवियर है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इट विल चेक लेवल 1 रूट, सुपरनेट रूट, डिफॉल्ट रूट। अगर नहीं मिला, नो डिफॉल्ट रूट, देन द पैकेट इज ड्रॉप। और क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर क्या है? इट इज रिकमेंडेड टू यूज क्लासलेस राउटिंग बिहेवियर बिकॉज सुपरनेट एंड डिफॉल्ट रूट्स कैन बी यूज्ड व्हेनेवर नीडेड। क्या होता है ना कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में, क्लासफुल राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स है वो सुपरनेट्स को, या फिर डिफॉल्ट रूट का मतलब ऐसे मान लीजिए कि समटाइम्स इट्स नॉट सो इजी टू सेव द इंफॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ रूट्स इन अ सिंगल राउटिंग टेबल। दूसरे तौर पे हम ऐसा समझ लीजिए कि क्या हमारा फोन हमारे लिए ऐसा मॉडर्न वर्क करता है? भाई मैंने मेरे फ़ोन में क्या कर रखा है, एक सिम डाल रखी है, इंटरनेट पैक रिचार्ज करवा रखा है। जैसे ही मैं इंटरनेट पैक ऑन करता हूँ, मेरे इंटरनेट चलता है, मैंने हॉटस्पॉट बना के मेरे लैपटॉप में चला रखा है। अभी मेरे लैपी में मुझे कुछ ढूंढना है, कोई पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो मेरे लैपी से मेरे फ़ोन तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। वहाँ से मुझे एक मॉडेम चाहिए, और वो मॉडेम मेरे लिए काम करेगा, वो मॉडेम का राउटर जो मेरे लिए है, वो मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या मेरे फ़ोन में मुझे कनेक्शन चाहिए, या फिर मेरा पैकेट यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा, वो सारी इंफॉर्मेशन, पूरी राउटिंग टेबल चाहिए? नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ कनेक्शन चाहिए। अच्छा, हम हमारे घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं, वहाँ क्या हमें राउटर्स की जो राउटिंग टेबल है शो आईपी रूट करके देखने की जरूरत पड़ती है कि सर मेरे पास गूगल कहाँ से मिल रहा है, नेक्स्ट स्टॉप, अच्छा फिर वहां से नेक्स्ट स्टॉप, अच्छा सर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है? नहीं चाहिए होता है। व्हाट आई नीड द कनेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट रूट का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी डू नॉट वांट टू increase the entries in our routing table. We will use a single route for every network, for all networks we will use a single route इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा जी सब, आपको कहीं भी जाना है, if you want to go to XYZ networks doesn't matter,
जस्ट गो फ्रॉम दिस एग्जिट इंटरफेस, आपको इस एग्जिट इंटरफेस से जाना है, दैट्स इट। मुझे मुझे मेरे टेबल में एंट्री नहीं चाहिए, मुझे नहीं बताना कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाना है तो यहाँ से जाओ, उस पे जाना है तो वहाँ से नहीं। आई वांट द कनेक्शन। और इंटरनेट पे मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, इतने सारे रूट्स हैं, मुझे उन रूट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कनेक्टिविटी से। तो डिफ़ॉल्ट रूट वहाँ पर हमारे लिए सक्सेसफुल रहता है, यूज़फुल रहता है। हम पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट रूट्स को भी पढ़ेंगे, कैसे वो काम करता है। ठीक है। तो कल हम लोग जो आज हम लोगों ने और कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, राउटिंग टेबल का बिहेवियर कैसा होता है, कैसे सर्चिंग की जाती है, कैसे राउटिंग होती है, कैसे पैकेट फॉरवर्ड होता है फ्रॉम राउटर टू राउटर, कैसे वो सारे काम होते हैं, वो सब के सब हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के तौर पे समझेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स को। तो आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे, लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, आप लोग वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और यस, क्लासफुल एंड क्लासलेस राउटिंग हमने कंप्लीट कर ली है फॉर टुडे, दैट्स ओके। हम इससे आगे नहीं जाएंगे आज, हमने ये जो किया है हमारा, दैट्स ओके। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियोस आप लोगों के पास है, आप लोग मुझे अपनी जो भी वीडियोस हैं मतलब जिनमें मैंने शेयर किए हैं